So this is an example which explains the concept of rank and nullity. How using the rank and nullity concept we can show a map is 1-1 or onto. The problem फिर लिख दे रहा हूँ मैं एक बार, कल तो ऐसे लिखे थे हमने. Prove that a linear map T from V3 to V3 defined by T of E1 is E1 minus E2, T of E2 is twice E2 plus E3, and E3 is E1 plus E2 plus E3. Okay, prove that this is neither 1-1 nor neither 1-1 nor onto. E1, E2, E3, I told you these are your standard basis elements, है ना? Because V3 3-dimensional, so E1 will be 1 0 0, E2 will be 0 1 0, and so on. So here map is not given to you, but the image is given to you, and moreover the images of the basis elements are given to you. These are the basis elements. You know, E1, E2, E3 forms a basis for V3. है ना? Standard basis in fact. So here I want to find that what about the map, 1-1 है या on2 है या नहीं है. हमें तो शो करना है. खैर यहाँ पे प्रॉब्लम चेक की भी हो सकती है. चेक दैट द मैप इज 1-1 और on2. अब प्रूफ में तो यू नो द आंसर. सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है. अच्छा, आप अपना चेक करिए नेटवर्क. सबको स्लो आ रही है, आप ही को आ रही है? बताइए. नो इट्स फाइन. नहीं सर अभी नहीं, मुझे तो धीरे आ रही, पता नहीं सबको. बाकी लोग बताएं. यस सर ठीक आ रही. अच्छा, हो सकता है बासित आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम हो. किसे कम आ रही है? यासिर को? यस सर, मैंने फुल पे वॉल्यूम रखा है सर, तब भी नहीं है. दोबारा हेडफोन लगाओ निकाल के अपने, क्योंकि बाकी लोगों को तो ठीक आ रही है. तो इसका मतलब प्रॉब्लम आपकी साइड में शायद. देखिए थोड़ा मैं लाउड बोलता हूँ. चलिए. So here we have to prove that this map is neither 1-1 nor onto. Okay. So one way is what? One way is कि firstly we find what is the map. पहले हम मैप कंस्ट्रक्ट करें, क्योंकि we know the images. तो मैप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जैसे हमने पीछे किया था, है ना? One way is that कि now we have several concepts. Using the concept we can show that map is 1-1 or not, onto or not. जैसे अगर आपको 1-1 है शो करना है तो you know एक रिजल्ट क्या है. व्हाट इज द रिजल्ट? इफ नल स्पेस इज अ जीरो स्पेस, है ना? तो अगर हम ये शो कर दें कि नल स्पेस जो है आपका दैट इज इफ इट इज नॉट जीरो स्पेस, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट 1-1, है ना? तो हियर वी नीड नॉट टू कंस्ट्रक्ट द मैप. यहाँ मैप फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें. ओके. So I will show here that what is the nullity of this, what is the null kernel of this. Clear है ये बात? How to find it? बताइए. तो let x1, x2, x3 belongs to null space of this T. ये हमने कोई arbitrary element लिया, and I will show that this is other than 0. क्योंकि अगर ये 0 आ गया तब तो मैप 1-1 हो जाएगा. हमें शो करना it is not 1-1. So I have chosen any arbitrary element this, and I will show this is non-zero, है ना? So if this belongs to NT, then what will happen? बताइए. By the definition of null space क्या होगा बताओ? इमेज जीरो. इमेज इसकी 0 होगी, है ना? T of x1, x2, x3 0. T of x1, x2, x3 this will be 0. 0 का मतलब ध्यान रखना है कोडोमेन जो V3 का है. अगर
तो ये ट्रिपलेट्स हैं इनफैक्ट। लिखने का तरीका होता है 0, 0 का मतलब है इट्स अ 0,0,0। चलो, अब हमें मैप तो नहीं पता, बट आई नो दैट these are the image of standard basis. So here can I write this? कैसे लिख सकते हैं इसे बताइए, क्योंकि ये क्या होगा देखिए, E1 is how much? 100, E2 is 010, 010. है ना? So this advantage we have only with this standard basis elements. Otherwise I cannot write like this. क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखो क्या आएगा, फर्स्ट में एड मल्टीप्लाई होगा, रेस्ट इज 0, so it is nothing but this. So this advantage I have only when you have standard basis elements. So I can write like this. Is it clear? This is equivalent to this. Now because T is a linear map, what I can write? है ना? This x2 can come outside. Okay. Yes. Now I can put the images. Yes. Sir. E1 X1 minus E1 E2. minus X2 2E2 plus E3 Yes. plus X3 Hmm. into E1 plus E2 plus E3 is equal to 0. अब इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ देखिए, क्योंकि आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 वैल्यूज ऑफ दीज 3 वेरिएबल्स, तो आई हैव टू सॉल्व इट. अब E1 माइनस E2 कितना होगा बताइए? इट इज 100, इट इज 010. सो व्हेन यू विल माइनस, हाउ मच यू विल बी गेटिंग? 1 माइनस 0, देखो ये है 1 माइनस 0, 0 माइनस 1 1 एंड minus 1 0 0 प्लस x2 2e2, तो 2 इंटू 0 और प्लस E3, 0 ये आपका 2 वेक्टर ही होता है. 1 बताइए. सो 2 इंटू 0 और प्लस 0, तो 0 0 ना? is 2 2 1 the 2 plus 0, so 2 and 12 plus 1. And what about this? 1 1 1 1 1 1. और यहाँ पर इसको 0 को भी अब मैं ट्रिपलेट्स में लिख देता हूँ, बिकॉज आई विल बी कंपेयरिंग. नाउ हाउ मच multiplying with component wise addition? So x1 plus 0 x2 plus X1 x3 minus x1 plus 2 x2 plus x3, and last one is x1 is 0, so x2 plus x3 is equal to 0 0 0, है ना? अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 3 इक्वेशंस, यहाँ लिख दे रहा हूँ. सो x1 plus x3 is equal to 0 minus x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 0 and ओके. अब इसे सॉल्व करके वील फाइंड व्हाट इज द वैल्यू. देखिए, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखो 0 नहीं आएगा. देखिए यहाँ पर रिलेशन आई है आपके पास कि x1 इज इक्वल टू माइनस, minus of X3 है ना? अब इसे अगर हम यहाँ रखते हैं X2 उठा के, plus X3 यहाँ पे भी रिलेशन आ गई है. x2 इज X2 इक्वल equal टू to माइनस x3. minus of X3 अब इसे अगर आप यहाँ रखेंगे देखिए क्या आएगा, माइनस 2x3 और ये x3 Yes. क्या जाएगा, सेम वही आएगी इस रिलेशन की. ये कितना देखिए माइनस x1, हाउ मच, माइनस 2x3 प्लस x3, कितना बचा? 2x3 0 sir. माइनस x3. तो यहाँ पे नहीं, यहाँ वही आएगा, देखो इसे रखोगे अगर तो यहाँ पर भी सेम वही आएगी. माइनस x3 रख दो, माइनस 2x3 प्लस x3, इट इज माइनस x3. तो x1 इज हाउ मच, ये रिलेशन आ जाएगी. तो अल्टीमेटली यू गॉट दैट ऑल x1 x2 x3 डिपेंडिंग ऑन x3, है ना? x3 इज अ फ्री वेरिएबल, 0 नहीं आ रहा है यहाँ पे. इट मीन्स व्हाट, x1 is equal to x2 is equal to minus x3. तो इसका मतलब क्या हुआ कि it does not have a zero source, zero नहीं है. So this implies that your null space NT, it is what, x1 X2 minus x, है ना? X1 सबको minus एक ही इसमें वेरिएबल लिख सकता हूँ ना मैं. तो अगर x1 लिया है तो ये माइनस x1 हो जाएगा, या x3 में लिख दे, किसी एक में लिख दो, where x1 belongs to real number. That means you can say if I am taking x1 common, so you have 1 1 minus 1, or you can say
इससे हम ये भी लिख सकते हैं जनरेटेड बाय एक ही बार, ऑल आर सिंगल। तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि इट इज नॉट जीरो। अगर x1 जीरो है तब जीरो आएगा, लेकिन अगर x1 जीरो नहीं है तब तो नॉन जीरो है ना। तो व्हाट इज द डायमेंशन? यू हैव सिंगल वेक्टर विच इज नॉन जीरो, सो इट मीन्स व्हाट कि नल स्पेस is not a zero space, है ना, is not Yes. zero space. So this implies that T is not 1 1, क्योंकि हमने जो थ्योरम प्रूव करी थी, it was both sided true. T is 1 1 if and only if null space is a zero space. Is it clear? null Yes, space sir. zero नहीं है। अगर आप इसकी nullity निकालेंगे, nullity is how much? Dimension of null space क्या है dimension इसकी? 1 sir. 1 है, क्योंकि you have a single vector which is non-zero. Single non-zero vector is always Li. तो इसकी डायमेंशन 1 है यहाँ पर, है ना। डायमेंशन 1 आने का मतलब मैप इज नॉट 1 1। अगर डायमेंशन 0 आती तो मैप इज 1 1। तो हाफ पार्ट इज डन कि टी इज नीदर 1 1। अब बात करेंगे ऑन टू की। ऑन टू डिपेंड करता है यू नो रेंज स्पेस पे। इफ मैप इज ऑन टू व्हाट विल हैपन? रेंज स्पेस शुड इक्वल टू द कोडोमेन, है ना। अगर ये है तो मैप ऑन टू है। अगर आपको नॉट शो करना है तो क्या होगा? नॉट इसके इक्वल बराबर टू, नहीं। है ना, यानी कि इसका प्रॉपर सबसेट होगा। चलिए, तो रेंज के लिए यू नो हाउ टू सॉल्व। अब फॉर ऑन टू, अब करेंगे बात फॉर ऑन टूनेस। तो फॉर ऑन टूनेस व्हाट आई विल टेक? आई विल टेक द रेंज स्पेस। अब हमें मालूम है E1 E2 E3 इज द बेसिस। E1 E2 E3, अगर मैं 3 वेक्टर्स ऐसे लिख दूं, दिस फॉर्म्स अ बेसिस फॉर B3। सो अगर ये बेसिस बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस सेट विल स्पैन द होल सेट एंड Li, है ना। यहाँ पे आई वांट टू यूज द थ्योरम व्हिच आई हैव प्रूव्ड यस्टरडे कि इफ सम वेक्टर्स स्पैन द डोमेन, ये मैं डोमेन ले रहा हूँ, T V3 से V3 है। तो इफ सम वेक्टर्स स्पैन द डोमेन देन देयर इमेजेस स्पैन द रेंज सेट, है ना। तो अगर E1 E2 E3 स्पैन कर रहा है इसे, तो अगर मैं इसका स्पैनिंग सेट ले लूं इमेजेस का, तो ये किसके इक्वल था? और के आर के, है ना। कोडोमेन के इक्वल नहीं था, ये रेंज स्पेस के इक्वल होता है, RT. आरटी के इक्वल होता है। अगर U1 U2 UN span the domain, their images will span the range set, not codomain। ये स्पैन करेगा। अब अगर हम देखें इसमें T1 इसकी इमेज रख लें, अगर तो T1 वाज हाउ मच? E1 माइनस E2, ये क्या आया था? 1 माइनस 1 0, है ना, 1 माइनस 1 0। T2 इज हाउ मच? T2 था 2E2 प्लस E3, इसकी वैल्यू क्या थी? 0 2 1। 2 2 1. और थर्ड वेक्टर था 1 1 1। अब अगर दे आर नॉट लीनियर कॉम्बिनेशन टू अदर, तब तो यही आपका पूरा सेट बन जाएगा रेंज स्पेस का, डायमेंशन 3 हो जाएगी। लेकिन इफ समवन इज लीनियर कॉम्बिनेशन दैट मींस सम वेक्टर इज LD वेक्टर, तो आई हैव टू रिमूव दैट LD वेक्टर। अब बताओ यहाँ पे कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनना है क्या? और सर इसमें इन्हें ऐड करो जरा फर्स्ट टू को। 1 1 1 थर्ड वाला आ रहा है. जैसे थर्ड वाला है। थर्ड वन इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वन। तो यहाँ पर 1 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आई कैन रिमूव दिस वेक्टर। तो आई कैन राइट, क्या हो जाता है, so I can write what? 1 minus 1 0 ये 0 ऐसे 2 हटा 1 देंगे। 7. Yes, 1 comma minus 1 comma 0 and 0 0 2 1. 2 1, this spanning equal to RT, है ना। reason is same because 1 1 1 is a linear combination of 1 minus 1 0 plus 0 2 1। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब ये दो वेक्टर देखिए, आर दे LD और LI? दे आर नॉट मल्टीपल, है ना। टू वेक्टर कैसे चेक करते हैं? जस्ट वी सी दैट वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट, दे आर मल्टीपल और नॉट। यहाँ मल्टीपल नहीं है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वेक्टर 0 है। तो जब आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट वेक्टर को 0 बनाने के लिए, तो क्या होगा? सारे 0 हो जाएंगे ना। सो दे आर नॉट मल्टीपल टू ईच अदर, सो दे आर LI।
So it means this implies that range space is generated by only two vector. कौन सा vector? 1 1 minus 0 1 0 यहाँ लिखते हैं. अच्छा 1 minus 1 यहाँ लिखते हैं. So this implies that range space is generated by 1 minus 1 0 and 0 2 1 0 2 1 है ना. ये li set है क्योंकि these are li, keep it mind. So that means what? Dimension of RT is range 2 2 है ना. डायमेंशन RT को क्या कहते हैं? रैंक स्मॉल. तब अगर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट 3. सो रेंज स्पेस yes sir इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है ना. दैट मीन्स V3. सो दिस implies that map is not. not on तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये शो कर सकते हैं जो रिजल्ट आपको मैंने कराया था. अच्छा यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है क्योंकि उसी के बेस पे आपकी नेक्स्ट थ्योरम है जिसके ऊपर ये टाइटल था रैंक नलिटी थ्योरम. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. उससे पहले यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करेंगे. आप देखिए क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास एक मैप था V3 to V3 है ना. यू हैव अ मैप, इट इज V3, इट इज V3. तो यू नो किसी भी मैप में यहाँ पर हमारे पास होता है ये नल स्पेस होता है और यहाँ पर ये होती है इसकी रेंज है ना. range तो आपने देखा कि यहाँ पर अभी हमने निकाला तो जो नलिटी आई थी, नलिटी तो आई थी 1 है ना. दैट मीन्स yes sir डायमेंशन ऑफ कर्नल, ये जो है कर्नल एंटी, इसकी डायमेंशन 1 थी है ना. ये होल 3 है देखो, तो 1 थी यानी कि ये होल कितना है 2 + 1 3. और रेंज कितनी Yes. आई? रेंज आई 2, 2 इसकी डायमेंशन 2 आई. ओके. सो इट मीन्स व्हाट कि कर्नल जो है आपका 1 है जबकि जब डोमेन जो था ये इट वाज हैविंग द डायमेंशन 3. 3 तो इट मीन्स कि क्या रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर आप देखें डायमेंशन ऑफ दिस डोमेन, डोमेन वाला V3 ले रहा हूं मैं, दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dimension of RT null प्लस Plus. डायमेंशन ऑफ NT null है ना. यानी कि डोमेन की जो डायमेंशन है वो रैंक और नलिटी के सम के इक्वल आ रही है. ये तो आई थी इट इज 2, इट इज 1, ये 3 था है ना. सो इट इज द रिजल्ट बेसिकली दैट इज कॉल्ड रैंक नलिटी थ्योरम. वो क्या कहती है कि डायमेंशन ऑफ डोमेन, ये V3 डोमेन है ध्यान रखना, कोडोमेन नहीं. डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस. ये आपकी कहलाती है रैंक नलिटी थ्योरम. ठीक है. इट इज ऑलवेज यहाँ पे जो 2 + 1 आया, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज अ रिजल्ट. 3 is equal to 2 + 1. Okay, so that is your rank nullity theorem. बात समझ में आई है? yes sir हाँ. So that is your rank nullity theorem. उसका मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट है आपका सिलेबस है. इफ यू वांट टू सी द प्रूफ, दे हैव प्रूव्ड ब्यूटीफुली इन द बुक. प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पे. थ्योरम 4.3.2. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. आपसे वाइवा में या कहीं पे भी स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रैंक नलिटी थ्योरम. रैंक नलिटी थ्योरम. So what it states, let T from U to V be a linear map, and U is a finite dimensional and U be a finite dimensional vector space. ये शॉर्ट में मैं लिखता हूँ. ठीक है. U की डायमेंशन फाइनाइट है क्योंकि फाइनाइटी को हम कंपेयर करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं. देन डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। ओके, ये थ्योरम है। और यू कैन से रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, है ना, इसीलिए इसको हम रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं। इसका प्रूफ है फॉर्मल वे में, पूरा इन्होंने प्रूफ किया हुआ है। ये तो मैंने एग्जाम्पल से वेरीफाई किया था सिर्फ यहाँ, ये वेरिफिकेशन है, प्रूफ नहीं है। प्रूफ आप अगर देखना चाहें तो यू कैन सी द प्रूफ इन द बुक, जिसकी आपके पास सॉफ्ट कॉपी। ठीक, इसे एज ए रिजल्ट याद रखना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है भाई, वेरीफाई अभी हमने कर ही लिया इसको। दोबारा एक और प्रॉब्लम है, यहाँ भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर इफ यू वांट, यू कैन वेरीफाई अगेन। एग्जाम्पल 4.19 है, पेज नंबर 121 पर। लेट t फ्रॉम V4 टू V3, यहाँ डोमेन कोडोमेन की डायमेंशन अलग कर दी। दिस इज अ लीनियर मैप and defined by, यहाँ पर भी इमेजेस दे रखी हैं इसके बेसिस एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर अब V4 है, तो V4 में इवन का मतलब क्या होगा? 1,0,0,0 1 0 0 0, ये इसकी इमेज दे रखी है, T1 T2 TE3 एंड TE4। तो यहाँ 4 एलिमेंट्स दिए हैं, V4 में 4 एलिमेंट्स होंगे बेसिस में। ठीक, देन वेरीफाई that R of t plus n of t is equal to कितना होगा? 4, है ना, Yes. क्योंकि डायमेंशन ऑफ u कितना, यहाँ डोमेन की डायमेंशन 4 है। अब E1 का मतलब है, ध्यान रखना है 1 0 0 एंड सो ऑन E3। यहाँ वेरीफाई करना है इसे, तो वेरीफाई के लिए वही करेंगे सभी, हमने पीछे रेंज स्पेस निकाला था, है ना, Yes, sir. सेम प्रॉब्लम है, बस रेंज स्पेस निकालेंगे आप RT। तो यहाँ 4 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, देखिए 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर इफ यू सी, पहले अगर मैं रेंज स्पेस की बात करूं और रैंक की, तो यू नो रैंक टी विल बी जनरेटेड बाय स्पैन ऑफ 4 एलिमेंट्स 1 1 1, और क्या है 1 -1 1 1 0 0 एंड 1 0। देखिए, अब देखो रेंज स्पेस की हमें बात मालूम है, रेंज स्पेस इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो इसकी डायमेंशन तो 3 है, तो कभी भी रेंज स्पेस की डायमेंशन 4 नहीं हो सकती, 4 से कम ही होगी, है ना। तो यहाँ पर एक वेक्टर तो आपका जो स्पैन कर रहा है डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हमने क्या बताया था, इन 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एनी 4 वेक्टर्स आर क्या होते हैं, LD और LI। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ, चलो, बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल ही एकदम से। वो बोर्ड भी शायद डिलीट हो गया जब हम कर रहे थे। अब ये न्यू बोर्ड आ गया होगा आपके सामने, है ना। हाँ। चलिए, तो वो डिलीट हो गई प्रॉब्लम, वो भी इसमें चली गई पिछले, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। विजिबल है भाई, इज इट विजिबल? Yes, sir. हाँ, तो हेयर V4 से V3. V4 चल, हाँ वही एग्जाम्पल दोबारा लिख देता हूँ मैं, वेरीफाई करनी थी थोड़ा। एग्जाम्पल 4.19 पेज 121 पे। तो हमें V4 से V3 एक मैप है,
इसको वेरीफाई करना था जिसमें इमेजेस गिवन है 1 1 1 TE2 is 1 minus 1 1 1 है ये and TE3 1 0 0 TE4 1 0 1 वेरीफाई थ्योरम चलो तो क्या कर रहे थे भाई हम कि रेंज स्पेस जो है range वो स्पेंड होगी आपके इमेज एलिमेंट से 1 1 1 yes sir ऐसे लिख दे रहे अब यू नो कि इन एनी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस n+1 वेक्टर्स आर ऑलवेज LD है ना LD तो yes अगर sir V3 है तो V3 में 4 वेक्टर्स LD होंगे डेफिनेटली तो दे आर yes sir LD yes sir है ना दे आर LD LD रीजन मालूम है आपको सिंस yes sir इन third one V3 4 वेक्टर्स आर LD तो मैं किसी भी एक वेक्टर को हटा सकता हूँ किसी को भी चाहे मान लो लास्ट वाले को हटा दिया तो ये स्पैनिंग सेट इसके इक्वल होगा 1 0 0 ओके अब यहाँ देखते हैं नाउ आई विल सी वेदर दीज आर LD और LI अगर ये LI है तो ठीक है यही आपकी डायमेंशन हो जाएगी अगर हम इसे चेक करें तो LI के लिए मैं इसका डिटरमिनेंट चेक कर सकता हूँ determinant डिटरमिनेंट ले लीजिए 1 1 1 1 minus 1 1 1 0 0 थर्ड रो के कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं ना प्लस माइनस प्लस क्योंकि जीरो है यहाँ पे क्या आएगा 1 0 2 1 माइनस प्लस 1 2 आ गया नॉट जीरो इम्प्लाइज दैट LI तो ये LI है so this implies that since LI so this implies that RT की डायमेंशन कितनी हो गई ये तीनों LI भी स्पैन भी कर रहे हैं तो डायमेंशन ऑफ RT इज 3 यही रैंक है रैंक निकल आई अब अगर हमें शो करना है तो कर्नल आपका इसका क्या आना चाहिए उसमें एक आना चाहिए so diamond 1 आना चाहिए ना कर्नल और निकाल Yes, लेते हैं तो कर्नल वैसे निकालेंगे क्योंकि आपको ये पता है तो फॉर कर्नल फॉर द नल स्पेस यू नो इफ x1 अब ये नल स्पेस का एलिमेंट आता है डोमेन से लेट x1 x2 x3 x4 any arbitrary vector belonging to NT then what will happen image of this 3 operate करेंगे 3 yes sir will 0 be 0 3 और 0 इसको I can write क्योंकि again I have an advantage of standard basis so I can write ये एडवांटेज सिर्फ स्टैंडर्ड बेसिस में कि मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ इट विल बी 0 0 अब इसको आप लीनियर मैप से ओपन कर दीजिए yes sir एंड यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ TE1 E2 जब इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे TE1 की वैल्यू क्या है 1 1 1 है ना तो जब आप 1 इसको 1 पुट 1 करेंगे 0 0 1 1 1 प्लस x2 1 minus 1 1 प्लस x3 1 0 0 प्लस x4 1 0 1 इसको you can arrange so it will be coming first x1 plus x2 plus x3 plus x4 x1 minus x2 plus x3 plus x4 तो 0 है yes third vector is x1 plus x1 x2 plus x2 plus x4 जाहिर है 3 वेक्टर्स ही आएंगे इन्हें you can compare it ठीक है तो यहाँ से तो आ गया रिलेशन एक x2 is equal to x4 ये आपस में इक्वल आ गया है ना
जब x2 x4 के इक्वल है, यहाँ रख दो जरा, x2 x4 कितना हो गया 2x4, तो x1 इज हाउ मच कमिंग, इससे बाय पुटिंग दिस x1 इज माइनस माइनस 2x4, है ना, ये x1 आ गया निकल के। जब यहाँ रखेंगे हम x1 की वैल्यू पुट कर दिया हमने -2x4 x4 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 2x4 -2x4 कितना आ रहा है x3 माइनस 0। तो ये उठा के यहाँ रखो ना, x2 को x4 रख दिया हमने और -2x4 को Yes, रख दिया यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे जब पुट करेंगे -2x4 प्लस x4 प्लस x3 प्लस x4, क्या आएगा ये इजिकल टू 0 है, तो x4 से x4 ये कट जाएगा पूरा, तो x3 इज 0, तो x3 तो हमेशा 0 रहेगा, लेकिन x2 x1 दे आर डिपेंडिंग ऑन x4, यानी कि 0 नहीं है। इसका मतलब कि जो नल स्पेस है, नल स्पेस आपका क्या होगा, अगर मैं वैल्यू रखूं x1 के टर्म में रख लूं या तो पहला वेक्टर तो x1, ठीक है। अब दूसरा x2 को अगर x1 के टर्म में रखना है तो क्या है, x2 इज x4 और x4 इज हाउ मच माइनस x1/2, तो x2 x4 के इक्वल है, ये कितना आ गया -x1/2, थर्ड वेक्टर इज ऑलवेज 0 और x4 कितना है, यही है माइनस वेयर x1 इज एनी रियल नंबर, है ना। इट मीन्स व्हाट, ये जो नल स्पेस है यहाँ पर ये x1 इज -2x4 आया ना, ठीक है। सो इसमें कितना आ रहा है 1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड x1 इक्वेशन में x1 था, हाँ सही है, अच्छा, तो सेकंड इक्वेशन में x1 माइनस x2 हैं? तो सेकंड इक्वेशन में सेकंड क्वेश्चन x1 माइनस x2 है। ये कितना है x1, ओहो अच्छा यहाँ ही गड़बड़ हो गई है, तभी ये x1 है, अच्छा तो ये x1 आएगा तो ये हो जाएगा ओके, तो यहाँ करेक्शन होगा, फिर वही मैं सोचूं कि इसका बुक का आंसर ये करेक्शन हो जाएगा, फिर x3 तो ठीक था आपका, यहाँ आ जाएगा x1 इजिकल टू x2, है ना, जब x1 इजिकल टू x2 लिखा हमने तो ये हो जाएगा 2x2 जगह हमने x1 रख दिया 2x1 प्लस x4, सो x4 इज हाउ मच माइनस x1 बाई 2x2 है ना, x3 0 जाएगा अभी, ठीक है, x2 प्लस 2x1 तो x4 इज -2x1 आएगा ये, है -2x1। अब सही है। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करें x1 में तो x1 और x2 इज, तो ये जो वेक्टर है ये दोबारा लिख दे रहा हूँ, अब अगर x1 में लिख रहा हूँ मैं तो x1 x2 इज x1 x3 is 0 and x4 is -2x, or you can say expand by 1 1 0 -2, है ना। तो क्या है डायमेंशन, सिंगल वेक्टर नॉन जीरो, सो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन इज 1, है ना। तो देखिए क्या आ गई, हाँ यही तो करना था मैं, रैंक कितनी आई थी, व्हाट वाज द रैंक, रैंक इज 3, so hence you can say, so hence dimension of V4 which is V is equal to rank T plus nullity of T which is 3 plus 1, है ना। तो ये आपकी वेरीफाई होगी। 3+1 अब एक प्रॉब्लम सेट है, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, अगर टाइम विल अलाउ तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट, ओनली वन प्रॉब्लम, वरना कल कर देंगे, मीन्स नेक्स्ट क्लास फ्राइडे। अगर यू भी है वेक्टर स्पेस, चलो से कल नेक्स्ट में करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि, लेकिन आपका ये लेक्चर देखते हैं पूरा रिकॉर्डिंग आती है नहीं आती है, ठीक है भाई, इस लेक्चर्स को देखिएगा और तैयारी करते रहिए। ओके।